1. What is NLP? NLP stands for Neuro-Linguistic Programming. Neuro means how your brain works. Linguistic means how you use language and words. Programming means your habits, patterns, and behavior. Simple meaning. NLP is a method to understand and change how you think, feel, and act. 2. Why NLP is important? NLP helps you improve confidence, remove fear and hesitation, increase focus and memory, communicate effectively, develop a success mindset. Example: instead of saying I cannot do this, say I am learning and improving every day. 3. Basic principles of NLP. Map is not reality. People see the world in their own way. Every behavior has a reason. There is always a cause behind actions. No failure, only feedback. Mistakes help you learn. Mind and body are connected. Your thoughts affect your feelings and actions. 4. Beginner level techniques. Positive affirmations. Repeat positive statements daily. Example: I am confident and capable. Visualization. Imagine your success clearly in your mind. See yourself achieving your goal. Anchoring. Create a trigger for a positive emotion. Example: press your thumb and finger together when you feel confident. Repeat it to build the connection. 5. Intermediate techniques. Rapport building. Build connection with others. Match their tone, speed, and body language. Reframing. Change the meaning of a situation. Example: I failed becomes I learned something valuable. Submodalities. Change how you see things in your mind. Make negative images smaller or dull. Make positive images brighter and bigger. 6. Advanced techniques. Timeline work. Change how you relate to past experiences. Remove negative emotions and keep the learning. Swish pattern. Replace bad habits with good ones. Visualize the bad habit and quickly replace it with a better image. Meta programs. Understand thinking patterns. Some people move toward goals. Some move away from problems. Language patterns. Use powerful words to influence thinking. Example: you can begin to feel more confident now. 7. NLP for students. Improve memory and concentration. Reduce exam fear. Learn faster. Daily practice. 5 minutes visualization. 5 minutes affirmations. 5 minutes calm breathing. 8. NLP for life and career. Useful in teaching, counseling, business, parenting, self-development. 9. Practice plan. First week. Focus on affirmations and visualization. Second week. Practice anchoring and rapport. Third week. Use reframing and mental image control. After 1 month. Start advanced techniques. 10. Key idea. Your mind can be trained and changed. You are the creator of your thoughts. If you change your thinking, you change your life. 11. Conclusion. NLP is a powerful tool for personal growth. It works when you practice it regularly. Start simple. Stay consistent. Think clearly. Act confidently. How to solve numerical problems step by step. Step 1. Read the question carefully. Understand what is given and what you need to find. Example: speed is 60 km per hour. Time is 2 hours. Find distance. Step 2. Write given and required. Given: speed 60 km per hour. Time 2 hours. Required: distance. Step 3. Choose the correct concept or formula. Distance equals speed multiplied by time. Step 4. Put the values. Distance equals 60 multiplied by 2. Step 5. Do the calculation. Distance equals 120 km. Step 6. Write the unit. Final answer 120 km. Step 7. Check your answer. Think logically. If speed is 60 and time is 2 hours, then distance should be around 120. So the answer is correct. Common mistakes to avoid: not understanding the question, using the wrong formula, ignoring unit conversion, calculation mistakes, not writing the unit. Topper strategy: practice daily, revise formulas regularly, start from easy and go to difficult. Keep a mistake notebook.
Use visualization in physics. Short method. Read. Write given. Choose formula. Calculate. Check. Practice question. Speed 40 km per hour. Time 3 hours. Find distance. Alpha State Programming Complete Step-by-Step Guide. Step 1. सही समय चुने। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। यह समय सबसे पावरफुल है क्योंकि माइंड नेचुरल अल्फा स्टेट में होता है। स्टेप 2. एनवायरनमेंट तैयार करें। शांत जगह, मोबाइल साइलेंट, हल्की रोशनी, डिस्टर्बेंस फ्री। स्टेप 3. सही पोस्चर, सीधा बैठें, बेस्ट, या आराम से लेट जाए। स्टेप 4. ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोके, 6 सेकंड में बाहर, 5-10 बार रिपीट करें। स्टेप 5. प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करें। सिर, आंखें, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, छाती, पेट, पैर। मन में बोले, मेरा पूरा शरीर शांत और रिलैक्स्ड है। स्टेप 6. अल्फा एंट्री टेक्निक। अब आप अल्फा स्टेट में जाने के लिए काउंटिंग शुरू करेंगे। तैयारी। आंखें बंद, शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड, सांस नॉर्मल और धीमी। कैसे करें? आपको 10 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है। हर नंबर के साथ सजेशन और फीलिंग जोड़नी है। पूरा स्क्रिप्ट। धीरे धीरे मन में बोले, 10. मैं शांत हो रहा हूं, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। 9. मेरे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, मैं अंदर की ओर जा रहा हूं, मेरा माइंड शांत हो रहा है। 7. मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। 6. मेरी आंखें गहराई से रिलैक्स है, मैं और गहराई में जा रहा हूं। 5. मैं आधा रास्ता पार कर चुका हूं, मैं और शांत हूं। 4. मैं गहरे शांत स्टेट में जा रहा हूं। 3. मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। 2. मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड और फोकस्ड हूं। 1. मैं अल्फा स्टेट में हूं, मेरा माइंड ओपन और रिसेप्टिव है। विजुअल टेक्निक, ऑप्शनल बट पावरफुल। खुद को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखें या लिफ्ट से नीचे जाते हुए इमेजिन करें। हर नंबर डीपर रिलैक्सेशन। रूल्स। जल्दी न करें, हर स्टेप पर 3-5 सेकंड रुके। फीलिंग के साथ बोले, अल्फा स्टेट पहचान, शरीर भारी या हल्का, मन शांत, नींद जैसा फील। अवेयरनेस बनी रहती है। स्टेप 7. सेफ प्लेस विजुअलाइजेशन। शांत जगह इमेजिन करें, जैसे पहाड़, मंदिर, समुद्र। यह माइंड को स्टेबल करता है। स्टेप 8. प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, अब सबकॉन्शियस माइंड ओपन है। स्टेप 9. एफर्मेशंस, रूल्स, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल्स। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं फोकस से पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। स्टेप 10. विजुअलाइजेशन। अपने गोल को मूवी की तरह देखें, खुद को सक्सेसफुल देखें। स्टेप 11. इमोशन जोड़े, महसूस करें, खुशी, गर्व, सफलता। इमोशन जितना स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट उतना फास्ट। स्टेप 12. एंकर टेक्निक। अंगूठा और उंगली प्रेस करें, उस समय स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखें। स्टेप 13. एक्सिट टेक्निक। 1 से 5 तक गिने। 1 मैं वापस आ रहा हूं, 2 शरीर जाग रहा है, 3 एनर्जी आ रही है, 4 मैं फ्रेश हूं, 5 आंखें खोले। स्टेप 14. डेली प्रैक्टिस। रोज 10-15 मिनट, कम से कम 21 दिन। स्टेप 15. मिस्टेक्स अवॉइड करें, जल्दी करना, नेगेटिव सोच। इरेगुलर प्रैक्टिस।
बिना इमोशन के एफर्मेशन। Final summary. Relaxation plus counting plus visualization plus emotion equals powerful programming. 100% अंक लाना संभव है, लेकिन इसके लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि सही तकनीक जरूरी है। NLP और ब्रेन इंजीनियरिंग की मदद से आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि पढ़ाई आसान लगे और याद भी लंबे समय तक रहे। अब पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझिए। लक्ष्य स्पष्ट करें। आपका दिमाग तभी काम करता है जब उसे साफ निर्देश मिलता है। कैसे करें? रोज सुबह और रात को बोले, मैं 100% अंक ला रहा हूं। मेरा दिमाग तेज है और मुझे सब याद रहता है। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। विजुअलाइजेशन तकनीक। जो आप सोचते हैं वही आपका दिमाग सच मानने लगता है। कैसे करें? आंख बंद करें। खुद को परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ लिखते हुए देखें। रिजल्ट में पूरे अंक आते हुए कल्पना करें। रोज 5 से 10 मिनट करें। अल्फा स्टेट प्रोग्रामिंग। यह दिमाग की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है। कैसे करें? सुबह उठते ही और सोने से पहले धीरे धीरे गहरी सांस ले, मन शांत करे। फिर अपने लक्ष्य से जुड़े वाक्य दोहराए, जैसे मुझे सब जल्दी समझ आता है, मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। एंकर तकनीक। यह आत्मविश्वास का बटन है। कैसे करें? अपने जीवन का कोई मजबूत आत्मविश्वास वाला पल याद करें। उस भावना को महसूस करें। उसी समय अंगूठा और उंगली को दबाएं। इसे कई बार दोहराएं। परीक्षा में वही दबाएंगे तो आत्मविश्वास तुरंत आ जाएगा। स्मार्ट स्टडी तकनीक। केवल रटना काम नहीं करता। 50-10 नियम। 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट आराम। एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करके याद करें। खुद से प्रश्न पूछे। स्पेस्ड रिपीटिशन। 1 दिन बाद दोहराए, 3 दिन बाद दोहराए, 7 दिन बाद दोहराए। याद करने की तकनीक। माइंड मैप बनाए। कहानी बनाकर याद करें। तस्वीरों के रूप में जानकारी को जोड़े, जैसे इतिहास की तिथियां कहानी बनाकर याद करें। विज्ञान के शब्दों को चित्र में बदले। परीक्षा की रणनीति। पहले आसान प्रश्न हल करें। समय को बांटकर लिखें। अंत में 10 मिनट उत्तर जांचने के लिए रखें। तनाव नियंत्रण। रोज 5 मिनट ध्यान करें। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। मोबाइल का उपयोग कम करें। दिमाग के लिए सही आहार। बादाम और अखरोट खाएं। फल खाएं। पर्याप्त नींद ले। ज्यादा पानी पिए। दैनिक दिनचर्या। सुबह अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। दिन में स्मार्ट स्टडी। रात में रिवीजन और अल्फा प्रोग्रामिंग। अंतिम सफलता सूत्र। स्पष्ट लक्ष्य प्लस विजुअलाइजेशन प्लस NLP प्लस स्मार्ट पढ़ाई प्लस रिवीजन बराबर 100% अंक। पढ़ाई में मन कैसे लगाए? अपना लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एग्जाम पास करना है। जब रीजन क्लियर होता है तो मन अपने आप लगने लगता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। पूरी किताब एक साथ मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जैसे, आज सिर्फ एक टॉपिक या 20 से 30 मिनट पढ़ाई। इससे दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। मोबाइल से दूरी बनाएं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। पढ़ते समय मोबाइल साइलेंट कर दे या दूसरे कमरे में रख दे। सही जगह पर पढ़ाई करें। जहां आप पढ़ते हैं वह जगह साफ और शांत होनी चाहिए। टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। लेटकर पढ़ने से नींद आती है।
पढ़ाई को एक्टिव बनाए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखकर पढ़े, खुद से सवाल पूछे, किसी को समझाने की कोशिश करें। इससे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। रोज का रूटीन बनाए। हर दिन एक फिक्स टाइम पर पढ़ाई करें, जैसे सुबह रिवीजन, दोपहर में नया टॉपिक, शाम को प्रैक्टिस। खुद को रिवॉर्ड दे। जब आप टारगेट पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दे, जैसे थोड़ा मोबाइल यूज या पसंदीदा खाना। इससे मोटिवेशन बना रहेगा। इमेजिनेशन का यूज करें। हर दिन 2 मिनट सोचे, मैं फोकस होकर पढ़ रहा हूं, मैं अच्छे मार्क्स ला रहा हूं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शरीर का ध्यान रखें। अगर बॉडी टायर्ड है तो मन नहीं लगेगा। अच्छी नींद ले। हल्का एक्सरसाइज करें। पानी ज्यादा पिए। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हर दिन थोड़ा पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन बहुत पढ़ना और फिर कई दिन कुछ नहीं पढ़ना गलत है। अंतिम बात, मन लगाने का इंतजार मत करें। पहले पढ़ाई शुरू करें, मन अपने आप लगने लगेगा। यादों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस टेक्निक। उद्देश्य, दर्द से भागना नहीं, उसे समझकर कमजोर करना। Steps. स्टेप 1, शांत जगह पर बैठें। स्टेप 2, उस याद को आने दे, उसे रोके नहीं। स्टेप 3, खुद से बोले, हाँ यह मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब यह खत्म हो चुका है, मैं अभी सुरक्षित हूं। स्टेप 4, अपनी भावना पहचाने, दुख, गुस्सा या डर। स्टेप 5, 5 बार गहरी सांस ले। Result. दिमाग लड़ना बंद करता है और दर्द कम होने लगता है। सोच बदलना, रिफ्रेमिंग टेक्निक। उद्देश्य, नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना। Steps. स्टेप 1, उस घटना को पहचाने। स्टेप 2, उसका नेगेटिव थॉट लिखें। स्टेप 3, उसे बदले। Example. पहले मैं असफल हो गया, अब मैंने सीख लिया और आगे बेहतर करूंगा। स्टेप 4, रोज 3 बार नया थॉट दोहराए। Result. दिमाग नई सोच अपनाने लगता है। ध्यान हटाना, फोकस शिफ्ट टेक्निक। उद्देश्य, दिमाग को पुरानी यादों से हटाकर काम में लगाना। Steps. स्टेप 1, जैसे ही याद आए तुरंत एक्शन ले। स्टेप 2, कोई काम करें, पढ़ाई, चलना, किसी को पढ़ाना। स्टेप 3, 5 मिनट नियम अपनाए, बस 5 मिनट काम पर ध्यान दे। Result. दिमाग धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन सीख जाता है। लिखकर बाहर निकालना, राइट एंड रिलीज। उद्देश्य, अंदर का दर्द बाहर निकालना। Steps. स्टेप 1, कागज ले। स्टेप 2, पूरी घटना और अपनी फीलिंग्स लिखे। स्टेप 3, लिखे मैंने इससे क्या सीखा। स्टेप 4, कागज को फाड़ दे या नष्ट कर दे। Result. मन हल्का हो जाता है। Visualization technique. उद्देश्य, याद की ताकत कम करना। Steps. स्टेप 1, आंख बंद करें। स्टेप 2, उस याद को फिल्म की तरह देखें। स्टेप 3, उसे छोटा और धुंधला बनाए। स्टेप 4, उसे धीरे धीरे गायब होते देखे। स्टेप 5, खुद को मजबूत रूप में देखे। रोज 5 से 10 मिनट करें। Result. दिमाग मेमोरी को कमजोर करने लगता है। शरीर को शांत करना, बॉडी रिलैक्सेशन। उद्देश्य, शरीर और दिमाग दोनों को शांत करना। Deep breathing. 5 सेकंड सांस अंदर ले, 5 सेकंड बाहर छोड़े। 10 बार करें। Walking. रोज 10 से 15 मिनट चले। मोबाइल का उपयोग न करें। Body relax. पैर से सिर तक शरीर को हिला छोड़े। Result. स्ट्रेस कम होता है और मन शांत होता है। Trigger control. उद्देश्य, उन चीजों को पहचानना जो दर्दनाक याद को एक्टिवेट करती है। Steps.
स्टेप 1 पहचाने कौन सी चीज याद दिलाती है। स्टेप 2 उसे कम करें या अवॉइड करें। स्टेप 3 धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाए। Example. जगह, व्यक्ति, गाना। Result. याद का असर कम होता है। खुद को माफ करना, सेल्फ फॉरगिवनेस। उद्देश्य, गिल्ट और रिग्रेट खत्म करना। Steps. स्टेप 1 अपनी गलती पहचाने। स्टेप 2 खुद से कहें मैंने अपनी समझ से काम किया था। स्टेप 3 उससे सीख ले। स्टेप 4 रोज बोले मैं खुद को माफ करता हूं। स्टेप 5 वही गलती दोबारा न करें। Result. मन हल्का और फ्री हो जाता है। Daily routine. सुबह, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव स्टेटमेंट। दिन में, Focus shift. रात को, राइटिंग और विजुअलाइजेशन। जब भी स्ट्रेस हो। Deep breathing. Final line. यादें नहीं बदलती लेकिन उनका असर बदला जा सकता है। How to achieve goals and success in life. स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1 क्लियर गोल डिसाइड करें, क्या करें, आपको क्या चाहिए ये बिल्कुल साफ तय करें। कैसे करें, स्पेसिफिक लिखें, जैसे 90% मार्क्स लाने हैं या डेली 3 घंटे पढ़ाई करनी है। लाभ, दिमाग को सही डायरेक्शन मिलता है। स्टेप 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाएं, क्या करें, अपने गोल के पीछे मजबूत कारण तय करें। कैसे करें, ये गोल क्यों ज़रूरी है, यह आपकी लाइफ कैसे बदलेगा। लाभ, मोटिवेशन लंबे समय तक बना रहता है। स्टेप 3 गोल को छोटे भागों में बांटें, क्या करें, बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। कैसे करें, मंथली प्लान, वीकली प्लान, डेली टास्क। लाभ, गोल आसान लगता है और पूरा करना पॉसिबल होता है। स्टेप 4 डेली एक्शन लें, क्या करें, रोज काम करें। कैसे करें, हर दिन 2 या 3 जरूरी काम पूरे करें। लाभ, कंसिस्टेंसी बनती है और प्रोग्रेस शुरू होती है। स्टेप 5 टाइम मैनेजमेंट सीखें, क्या करें, समय का सही उपयोग करें। कैसे करें, सुबह इंपॉर्टेंट काम करें, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करें। लाभ, कम समय में ज़्यादा काम होगा। स्टेप 6 ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएं, क्या करें, ध्यान से देखना और समझना सीखें। कैसे करें, पढ़ते समय वाई और हाउ पूछे। लाभ, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेप 7 विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, क्या करें, अपने गोल को माइंड में देखें। कैसे करें, रोज 5 मिनट इमेजिन करें कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। लाभ, कॉन्फिडेंस और बिलीफ बढ़ता है। स्टेप 8 डिसिप्लिन डेवलप करें, क्या करें, मन करे या न करे काम करें। कैसे करें, डेली रूटीन फॉलो करें। लाभ, सक्सेस डिसिप्लिन से आता है। स्टेप 9 फेलियर से सीखें, क्या करें, गलतियों को एक्सेप्ट करें। कैसे करें, क्या गलत हुआ उसे समझें। लाभ, इम्प्रूवमेंट तेजी से होता है। स्टेप 10 पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, क्या करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। कैसे करें, नेगेटिव सोच और लोगों से दूर रहें। लाभ, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहता है। स्टेप 11 हेल्थ का ध्यान रखें, क्या करें, शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रखें। कैसे करें, अच्छी नींद लें, हल्का एक्सरसाइज करें, संतुलित भोजन लें। लाभ, एनर्जी और फोकस बढ़ता है। स्टेप 12 डेली रिव्यू करें, क्या करें, दिन के अंत में चेक करें। कैसे करें, आज क्या किया, क्या सुधार करना है। लाभ, लगातार ग्रोथ होती है। फाइनल सक्सेस फॉर्मूला, क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग रीजन, डेली एक्शन, डिसिप्लिन। इन 4 चीज़ों को फॉलो करने वाला व्यक्ति जरूर सफल होता है। पावरफुल लाइन, गोल साफ रखें, रोज एक्शन ले, डिसिप्लिन बनाए रखें और कभी हार मत माने। सक्सेस एक दिन में नहीं, डेली हैबिट से बनती है। छात्रों के लिए प्रेरणादायक लेख। विषय, विश्वास बढ़ाने की मानसिक प्रक्रिया। आज के समय में छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। कई बार विद्यार्थी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी होती है। विश्वास क्या है? विश्वास एक मानसिक शक्ति है जो हमें ये भरोसा दिलाती है कि मैं कर सकता हूँ। जब छात्र अपने अंदर यह सोच विकसित कर लेते हैं, तो कठिन से कठिन विषय भी आसान लगने लगते हैं। विश्वास क्यों जरूरी है? ये हमें डर और तनाव से दूर रखता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, लक्ष्य प्राप्त करने की ऊर्जा मिलती है। विश्वास बढ़ाने के आसान तरीके। 1. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सफल हो सकता हूँ। नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे हटाना जरूरी है। 2.
छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य देखकर घबराने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. नियमित अभ्यास करें, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही विश्वास मजबूत होगा। बिना अभ्यास के आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। 4. ध्यान और एकाग्रता, मेडिटेशन। रोज 5-10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. अपनी तुलना दूसरों से न करें, हर छात्र अलग होता है। अपनी क्षमता को पहचानें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। एक महत्वपूर्ण बात, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। निष्कर्ष, छात्र जीवन में सफलता पाने के लिए केवल किताबें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अंदर विश्वास पैदा करना सबसे जरूरी है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। याद रखें, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। शीर्षक: इम्प्रेशन बनाने की कला। हर छात्र के लिए जरूरी कौशल। आज के समय में केवल पढ़ाई में अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों पर अच्छा प्रभाव इम्प्रेशन डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक छात्र के लिए ये कौशल जीवन के हर क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू और करियर में सफलता दिलाने में मदद करता है। इम्प्रेशन क्या है? इम्प्रेशन का मतलब है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो सामने वाले के मन में आपके बारे में एक छवि बनती है। यही आपकी पहचान बन जाती है। इम्प्रेशन क्यों जरूरी है? शिक्षक और मित्र आप पर भरोसा करते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। अच्छा इम्प्रेशन बनाने के आसान तरीके: 1. सकारात्मक सोच रखें, हमेशा अच्छे विचार रखें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका व्यवहार भी अच्छा होता है। 2. दूसरों की प्रशंसा करें, जब आप किसी की सच्चे मन से तारीफ करते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है। इससे आपका इम्प्रेशन बेहतर बनता है। 3. ध्यान से सुनना सीखें, अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको सम्मान देते हैं। 4. बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे बैठना, आंखों में देखकर बात करना और मुस्कुराना, ये सब आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। 5.
नियमित अभ्यास करें, हर दिन 10-15 मिनट इन आदतों का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। एक खास अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक, शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करके किसी व्यक्ति को अपने सामने कल्पना करें। अब उसके बारे में सकारात्मक बातें सोचें और मन ही मन उसकी तारीफ करें। लगभग 3-5 मिनट तक यह अभ्यास करें। इससे आपकी सोच सकारात्मक बनेगी और असल जिंदगी में भी आपका व्यवहार बेहतर होगा। निष्कर्ष, एक छात्र के लिए इम्प्रेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही आदतों और नियमित अभ्यास की जरूरत है। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और अच्छे व्यवहार अपनाएंगे, तो आप हर जगह एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। याद रखें, आपका इम्प्रेशन ही आपकी पहचान है। शीर्षक, सफलता का आधार, आत्म जागरूकता और सही निर्णय। आज के समय में बहुत से युवा जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना सही सोच और योजना के उठाया गया कदम अक्सर असफलता का कारण बन जाता है। प्रस्तुत कहानी में खुशीराम नामक एक युवक का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि केवल डिग्री या ज्ञान ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही निर्णय और आत्म जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। खुशीराम ने एमकॉम की पढ़ाई पूरी की और उसे लगा कि अब वो आसानी से व्यापार कर सकता है। उसने बिना अधिक सोच विचार किए खेलकूद के सामान की दुकान खोल ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे बिक्री कम होने लगी और खर्च बढ़ते गए। कुछ ही महीनों में उसे दुकान बंद करनी पड़ी। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि बिना योजना और बाजार की समझ के किया गया कार्य असफल हो सकता है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी, योजना और अनुभव होना आवश्यक है। केवल उत्साह या आत्मविश्वास के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। महान विचारक स्टीफन आर कवी के अनुसार, मनुष्य को ईश्वर ने 4 विशेष शक्तियां दी हैं, जो उसे अन्य जीवों से अलग बनाती हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, विवेक, कॉन्शियंस, सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, इंडिपेंडेंट विल पावर, अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने की क्षमता। यदि खुशीराम ने इन शक्तियों का सही उपयोग किया होता, तो शायद वह पहले बाजार का अध्ययन करता, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझता और फिर व्यापार शुरू करता। इससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती। अंत में ये कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि सही सोच, योजना और आत्म जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। हमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, ताकि हम असफलता से बच सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
ESP क्या है? ESP का पूरा नाम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। इसका अर्थ है 5 इंद्रियों के अलावा जानकारी महसूस करना, लेकिन सही समझ ये है, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह आपके ब्रेन की डीपर प्रोसेसिंग एबिलिटी है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था JB राइन ने। ESP की गहराई से समझ माइंड के 2 भाग, कॉन्शियस माइंड जो आप अभी सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और डेटा स्टोर करता है। ESP का कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ESP कैसे काम करता है? आपका ब्रेन लगातार सिग्नल्स कलेक्ट करता है, जैसे फेस एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, एनवायरनमेंट चेंजेस, फिर सबकॉन्शियस इन सबको प्रोसेस करता है और आपको एक फीलिंग देता है। इसे ही इंट्यूशन कहते हैं। ESP के प्रकार विस्तार से टेलीपैथी, ऐसा लगता है कि आप किसी के थॉट्स समझ रहे हैं, असल में आप माइक्रो एक्सप्रेशंस और बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं। क्लेवोयंस, दूर या अनसीन चीज़ों को महसूस करना, कई बार यह इमेजिनेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। प्रिकॉग्निशन, भविष्य का अंदाजा, असल में ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेडिक्शन करता है। इंट्यूशन, सबसे पावरफुल और रियल इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक एंगल, ESP पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का साइंस है। पैटर्न रिकॉग्निशन, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग, न्यूरल कनेक्शंस, आपका ब्रेन बहुत फास्ट एनालिसिस करता है जो कॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता। ESP डेवलपमेंट कंप्लीट सिस्टम। स्टेप 1, माइंड काम ट्रेनिंग, डेली 10 मिनट्स। प्रोसेस, शांत बैठे, धीरे धीरे सांस लें, सांस पर ध्यान रखें। बेनिफिट, ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है, फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है। स्टेप 2, ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग, डेली प्रैक्टिस, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें, आसपास की छोटी डिटेल्स नोटिस करें। एक्सरसाइज, आज 5 नई चीज़ें ऑब्जर्व करें। बेनिफिट, सबकॉन्शियस डेटा इंक्रीज। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग, प्रोसेस, आंख बंद करें, कोई सीन इमेजिन करें जैसे क्लासरूम, फ्रेंड का फेस। बेनिफिट, ब्रेन पावर और इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। स्टेप 4, इंट्यूशन एक्टिवेशन एक्सरसाइज, कोई डिसीजन लेने से पहले रुके, फील करें, फिर एक्शन लें, रिजल्ट कंपेयर करें। बेनिफिट, डिसीजन एक्यूरेसी बढ़ती है। स्टेप 5, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, मोबाइल टाइम कम करें, नेगेटिव थिंकिंग कम करें, फोकस इंक्रीज करें। एडवांस ESP प्रैक्टिस, साइलेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस, 10 मिनट्स बिना सोचे ऑब्जर्व करें। एनर्जी अवेयरनेस, अपने बॉडी सेंसेशंस फील करें। पैटर्न प्रिडिक्शन, लोग क्या करेंगे गेस करें। डेली रूटीन फुल प्लान। मॉर्निंग 5 मिनट्स ब्रीदिंग, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन, डे टाइम ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, नाइट 1 इंट्यूशन टेस्ट, सेल्फ रिव्यू, कॉमन मिस्टेक्स, जल्दी रिजल्ट चाहना, फेक पावर्स पर विश्वास, प्रैक्टिस, स्किप करना, रियल ट्रूथ। ESP कोई सुपर पावर नहीं है, ये ट्रेन्ड माइंड है। आपका ब्रेन ऑलरेडी पावरफुल है, बस उसे ट्रेन करना है। फाइनल लाइन, काम माइंड प्लस डीप ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। What is midbrain activation? Midbrain activation is a training method that focuses on improving coordination between the left and right parts of the brain. The midbrain is considered a connecting center that helps both sides work together. Left brain is linked with logic, calculation, and analysis. Right brain is linked with creativity, imagination, and intuition. The goal of this training is to balance both sides so a person can think clearly and creatively at the same time. Scientific idea behind it. This concept is often connected with a relaxed mental state called the alpha state. In this condition, the mind becomes calm, focused, and more open to learning. Training usually includes relaxation, breathing, and concentration exercises to reach this state. What happens in training? Midbrain activation programs usually include meditation and breathing exercises, brain coordination activities, visualization techniques, memory improvement tasks, focus and concentration practice, blindfold activities for sensory awareness. Claimed benefits. Many programs claim the following benefits: better memory, improved concentration, faster learning ability, increased creativity, stronger intuition, better confidence. Some programs also claim that children can identify objects or read while blindfolded. Important reality check. It is important to understand the truth clearly. There is no strong scientific proof that humans can read or see without using their eyes. Blindfold reading claims are usually based on practice, guessing, or tricks. However, some parts of the training are genuinely useful. Meditation improves focus.
Exercises improve brain coordination, confidence and motivation increase. So, the benefits come from practice, not from any magical power. Best age for training. Most programs are designed for children between 5 and 15 years of age because brain development is faster during this period. Simple practices you can do daily. Deep breathing for 5 minutes. Close your eyes and imagine objects clearly. Play memory games daily. Do cross-body exercises like touching opposite knee with hand. Practice meditation regularly. Made brain activation versus reality. Claim says instant intelligence. Reality says improvement comes with regular practice. Claim says blindfold reading. Reality says it is not scientifically proven. Claim says full brain activation. Reality says the brain is already active and improves with training. Conclusion. Made brain activation is not a magical process. It is a combination of relaxation, exercise, and mental training techniques. It can help improve focus, confidence, and learning ability if practiced regularly. True success depends on discipline, consistency, and proper guidance. What is DMIT? DMIT stands for Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. It is a method that studies the patterns of fingerprints to understand a person's inborn abilities, learning style, and personality traits. The word dermatoglyphics comes from two terms. Derma means skin. Glyphics means carvings or patterns. So, it simply means the study of skin patterns, especially fingerprints. Basic concept of DMIT. DMIT is based on the idea that fingerprint patterns are connected with brain development. Since fingerprints are formed before birth and do not change throughout life, they are considered a natural indicator of a person's potential. It is believed that different fingerprint patterns are linked with different brain lobes and functions. Types of fingerprint patterns. There are mainly three types of fingerprint patterns: loop, whirl, arch. Each pattern is associated with certain characteristics such as learning ability, thinking style, and behavior. What DMIT claims to analyze. DMIT reports usually include learning styles such as visual, auditory, or kinesthetic. Multiple intelligence types like logical, linguistic, musical, interpersonal, and others. Brain dominance such as left brain or right brain preference. Strengths and weaknesses. Career suggestions. Behavior and personality traits. Multiple intelligence theory. DMIT is often linked with the theory of multiple intelligence proposed by Howard Gardner. According to this theory, intelligence is not only about marks or IQ. It includes different types such as logical intelligence, linguistic intelligence, musical intelligence, bodily intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence. DMIT tries to identify which type is stronger in a person. Process of DMIT test. The process is simple. Fingerprints of all 10 fingers are scanned. Patterns are analyzed using software. A detailed report is generated. Counseling is provided based on the report. Claimed benefits of DMIT. Better understanding of child's potential. Identification of learning style. Early career guidance. Improved parenting and teaching methods. Boost in confidence. Important reality check. It is very important to understand the scientific truth. There is no strong scientific proof that fingerprint patterns can accurately determine intelligence, personality, or career success. Scientific fields like neuroscience and what is abacus? Abacus is an ancient calculating tool used for performing arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. It is made of rods and beads, and each bead represents a numerical value. With practice, students learn to visualize the abacus in their mind. This is called mental abacus, which allows them to solve calculations without any physical tool. Benefits of abacus. Improves concentration and memory. Develops visualization power. Enhances left and right brain coordination. Increases calculation speed and accuracy. Builds strong number sense. 2. What is Vedic maths? Vedic maths is an ancient Indian system of mathematics derived from the Vedas. It consists of simple tricks and formulas called sutras, which make calculations quick and easy. Instead of long traditional methods, Vedic maths provides shortcut techniques to solve problems mentally. Benefits of Vedic maths.
reduces calculation time, makes maths easy and interesting, improves problem solving skills, helps in competitive exams, boosts confidence in mathematics. 3. Difference between abacus and Vedic maths. Abacus, Vedic maths, uses beads, initially physical, uses mental formulas. Best for beginners and kids. Suitable for higher classes. Focus on visualization. Focus on shortcuts and logic. Develops brain power. Improves speed techniques. 4. How they help in super fast calculation. When both abacus and Vedic maths are combined, students get extraordinary speed and accuracy. Abacus strengthens the brain and visualization. Vedic maths provides quick solving tricks. Together they create mental calculator ability. Example: multiplication like 98 times 97 can be solved in seconds using Vedic maths sutras. 5. Real life applications. School exams, CBSE, NEWS, UP Board, competitive exams, SSC, banking, NDA, daily financial calculations. Business and accounting work. 6. How to learn step by step. Start with basic number understanding. Learn abacus fundamentals and practice regularly. Move to mental abacus training. Learn Vedic maths sutras one by one. Practice speed tests daily. Apply in real life calculations. 7. Conclusion. Abacus and Vedic maths are not just calculation tools, they are brain development systems. They improve intelligence, focus, and confidence in students. In today's competitive world, mastering these techniques can help students achieve super fast calculation skills and success in exams and life.